वेलकम ऑल स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आईसीटी इको फॉर यू चैनल में। भगवान का नाम लेने के बाद प्रेयर के बाद हम अपना सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड का। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे। थोड़ा सा रिवाइज करें तो बहुत सारे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन आपको मिले होंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर दिए होंगे। अगले चैप्टर के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कहा था कि आपके टेक्स्ट बुक में से जो भी पेज वाइज आप खुद अपने एमसीक्यू को फाइंड आउट करो और नोटबुक के अंदर लिखो। अगर नहीं लिखे तो प्लीज स्टार्ट द वर्क ऑफ फर्स्ट चैप्टर। दोस हु आर स्टिल न्यू viewers, please subscribe this channel, and those who are miss my chapter 1 video, I will put link of first chapter in this comment box, so you can find out easily first chapter of economics, that is introduction and economics. Now second chapter is going on here. Those who are new and first time viewers, please subscribe this channel in ICT Eco for You channel, www.ictco for you. Then press the icon button, and if you have any query you can direct contact on my 96625324 number. Here you can find out my number. WhatsApp number is there, 9662532418. And secondly, if you know any textbook or any want to materials regarding PDF or whatever, videos are some of the educational video of 1 to 12 standard, basically 11 12 standard of economics and other subject PDF are also there, so you can easily find out this type of in Android version mobiles in from Google Play. You have to just type ICT Eco for channel. So I am welcome you all. हर एक का स्वागत है सेकंड चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी आपका बाकी काम है वो कंप्लीट करते रहना, क्योंकि वीक के अंदर हम आपकी टेस्ट भी लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगी, ऐप बेस्ड टेस्ट होगी, तो ऐप भी आप डाउनलोड करते रहना। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर को ओवर किया। आपकी कमेंट भी बहुत सारी मिली, उनके अंदर आंसर भी आपको मिल गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप थ्रू मुझे पूछे, उनका भी हमने सॉल्यूशन दिया है। नाउ very important, those all who are still not having joined in the group, so please add in this group, and you have to getting so many notification through this channel. So I am welcome you heartily all. Those who are new subscriber, please subscribe and press the icon, bell icon, so that you can find out notifications. So let's start second chapter of the fundamental concept and terminologies in ICT Coverage channel. Welcome all from Rupesh Nayak. In this chapter we studied of price and value, goods and services, wealth and welfare, types of wealth, functions of productions, factors of production, land, labor, independent capital that you learned in standard 10, trade cycle, irregular, seasonal, long run and cyclical, then definition of the trade cycle, then phases of trade cycle, boom, recession, depreciation and recovery. So let's start our first chapter, second chapter, fundamentals, concept and terminology. काफी easy chapter है, आप सभी को दूसरी बार मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। क्या करना है आप सभी को पता है। अभी भी अगर आपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक और आपके हाथ में पेन नहीं है तो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड टेक दिस थ्री थिंग्स। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं तो यू कैन सी इन योर स्क्रीन सेकंड चैप्टर पेज ऑफ नंबर 11 इज देयर, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट। इफ यू हैव स्टिल नॉट हैविंग अ नोटबुक एंड पेन, प्लीज टेक and note down whatever I speak in coming up वीडियो को एंड तक देखते रहना। बीच बीच में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। दूसरा, जो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन आपको मिले वो आपको डिक्टेट करने हैं। साथ में ही जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बोला था कि जैसे जैसे चैप्टर के पेजेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही आपको 11 चैप्टर, तो इस 11 पेजेस है तो 11 नंबर के पेजेस पे आपको फाइंड आउट करना है, खुद ही क्वेश्चन बनाना है, खुद ही लिखना है। दिस इज माई एक्सरसाइज, दिस इज माई क्वेश्चन, सो दैट यू कैन फाइंड आउट एंटायर ऑल पेजेस very cleanly. Second, if there is any problem, any doubt, you can comment me or you can directly ask me on my mobile number 24/7. And second, very important for you, this is second chapter, very easy chapter, very scoring subject, and so many concept and so many terminology are there and very easy for you. It is a marketing chapter. Please try to concentrate on my word. जो मैं 2 बार 3 बार बोलूँ उसके ऊपर बहुत सारे हम डिवीजन राउंड पे भी जाने वाले हैं। जैसे अप टू 5 चैप्टर ओवर होगा, 1 to 5 चैप्टर ओवर होगा, we will start our revision round. In this revision round is very important because there are so many tricks how to remember, how to write, how to manage your question in C section, D section, E section. तो
जब रिवीजन राउंड स्टार्ट होगा 1 to 5 चैप्टर का, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की हम डिस्कशन करेंगे, कैसे लिखना है आपको, कैसे ट्रिक बनानी है, ट्रिक कौन सी होगी, कैसे हम याद रखेंगे हर एक पॉइंट को, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास पॉइंट दिमाग में है तो आप जीत गए। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। इफ यू आर गेटिंग 50 out of 50, then there is no any surprising for you. Why? Because it is very easy chapter, and if you concentrate on every and each part of it, it is very very interesting for you. सेकंड चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस और वैल्यू से। डिक्टेट करते रहना, अभी भी नोटबुक नहीं ली तो प्लीज पोस्ट करके नोटबुक ले लो। जहां जहां मैं ऐसा बोलूँ आपको कि ये आप अपने नोट में नोट डाउन कर दो, नोट डाउन करते रहो, ताकि आपको अच्छी तरह से पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। और होमवर्क कैसे करना है वो आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इवन दोस हु आर स्टिल न्यू, प्लीज टेक 1-200 पेजेस नोटबुक एंड स्टार्ट योर होमवर्क। इन एवरी पेजेस यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ एमसीक्यूज आर देयर। एक सेंटेंस के क्वेश्चन आपको लिखने हैं जिसके अंदर एमसीक्यू बेस हो। एक पेज के अंदर मिनिमम 3 के 4 आप निकालो, ढूंढो और उसको डायरेक्ट आंसर दो। एमसीक्यू के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव नहीं डालोगे तो चलेगा, सिर्फ 1 वर्ड ही होगा तो भी चलेगा, मगर आई वांट मिनिमम 4 to 5 in 1 pages. If there is a graphs or whatever, it not possible, so it is understandable. So now start first chapter. Introduction. Economics studies the fractions behaviors, relation behavior ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जो इकोनॉमी है वो पूरी हमारी ह्यूमन बीइंग की ही स्टडी करती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेशनली एक्टिविटीज conducted are called economic activity that we learned in first chapter. And in order to begin the study of the economic as a science, it is necessary and helpful to get clearly about the some frequently used concept and basic टर्मिनोलॉजीज ऑफ द इकोनॉमिक्स। अगर नेक्स्ट चैप्टर तक हमें जाना है, 3rd 4th 5th 11 तक जाना है, तो टर्मिनोलॉजी का हमें स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टार्ट करें प्राइस और वैल्यू। सिमिलर वर्ड आर दैट, वैल्यू एंड प्राइस हम एक दूसरे के जगह में यूज करते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, प्राइस कितनी है। ये तो प्राइस और वैल्यू एक दूसरे की जगह पे हम करते हैं यूज, मगर देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन दिस टू एज पर इकोनॉमिक। हम अगर ऐसा पूछे टेक्स्ट बुक की प्राइस कितनी है तो उसे प्राइस कहेंगे, और दिस गुड्स इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी उसका जो प्राइस है वो काफी एक्सपेंसिव है। दिस गुड इज वैल्यूएबल, ये गुड वैल्यूएबल है। ये दोनों में फर्क नजर आएगा आपको। इन द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एंड वैल्यू डिफरेंट एंड इट्स necessary to first understand the concept of the value. Value अगर हम जानेंगे उसके बाद प्राइस के बारे में देखेंगे। Value can be understood in 2 viewpoints. Very very important. You mark it important. Not down in your notebook. How many categories are there for the value? Value can be understood by how many ways? There is 2 viewpoints. First is from viewpoint of utility, that is called, and point of view of exchange, that is called exchange value. First use value and second exchange value. Keep in mind that very very important for section B. How many viewpoints for the understanding of value? So value can be understanding by the 2 points. That is, first is from viewpoints of the use, that is called use value, and second viewpoint of exchange, that is called exchange value. So first use value. Use value means what? That we discuss now. Use value. The use value is determined by the useful of the commodity to the consumer or his various needs. For example, food, water, sunlight, etc. Use value यानी जो हम अच्छी तरह से ये पॉइंट को समझे कि यूज वैल्यू क्या है, तो आसानी से रिलेशनशिप जो है यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू का हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें यूज वैल्यू की। द यूज वैल्यू इज द डिटरमाइंड by the usefulness of a commodity to a consumer for his or her various needs. For example, food, water, sunlight, etc. यानी जो कोई भी चीज जो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी यूटिलिटी उसकी इंपॉर्टेंस रखती है, उसे हम यूटिलिटी वैल्यू यानी यूज वैल्यू बोलेंगे। यानी कोई भी चीज कोई भी इंसान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी यूजफुल है, उनकी जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन को हम यूज वैल्यू बोलेंगे। जैसे कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एयर लेते हैं, हमें सनलाइट मिलते हैं, दिस ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो दिस इज यूज वैल्यू। सेकंड पॉइंट इज एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू, दैट इज द एक्सचेंज वैल्यू इज द वर्थ ऑफ 1 unit of a commodity measured in terms of the amount of other commodity which it can exchange for. For example, 1 kg silver exchange 10 gram of the gold, then the exchange value of 1 kg of the silver is 10 gram value. यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, हमने बाटर सिस्टम में देखा था। वी आर
exchange our goods and commodity in commodity against commodity, service against commodity, service against service. These are we can understand. But what is the barter value? कोई भी चीज के बदले में हम कोई भी चीज मिल सकती है हमें, तो किसी एक चीज के बदले हमें कितनी चीज मिलेगी, दैट इज द बार्टर वैल्यू। अगर गोल्ड के बदले में हमें कितने वैल्यू के सिल्वर कॉइन मिलेंगे, तो वो वैल्यू हुई गोल्ड की, यानी एक के सामने हमें कितना दूसरा मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड बार्टर वैल्यू। नाउ वेरी क्लियर अबाउट यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू, देन वी आर कंडक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड विनिमय, सॉरी वो एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड बार्टर। बार्टर दैट इज कॉल्ड इन गुजराती वर्ड विनिमय, जो हम एक दूसरे के लेन देन करते हैं, बार्टर सिस्टम। साटा पद्धति भी इसे कहते हैं, विनिमय भी कहते हैं गुजराती प्रोनाउंसिएशन में, और हिंदी के अंदर उसे लेन देन, जिसे हम बार्टर सिस्टम से जानते हैं। तो एक्सचेंज वैल्यू यानी बार्टर सिस्टम की तरह हम देखें, मगर वहां पे पैसे के जगह हम कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं, मगर यहाँ पे किसी एक केजी के एक्सचेंज में हमें कितना मिल सकता है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। Relationship between use value and exchange value are there. If the commodity has high use of value, then it not necessarily said to have the high exchange value. But if the commodity has high exchange value, then the surely has some use value. Exchange value is determined by the scarcity. If they have some use value, यहाँ पे दो बात की गई है कि if the use value is higher than the exchange value, there is a relationship between very clearly. If the use value is higher than the exchange value, it may be possible because some of the reason, if the necessary things are very important, then the barter value. So barter system is very very important here. Second, if those are not an scarcity, जो commodity के अंदर scarcity है, उन commodity की हमें use value अगर कम आती है तो भी उनकी exchange value बढ़ जाती है। Keep in mind that first point is very very important. अगर जिस चीज की यूज वैल्यू हो, उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उनकी एक्सचेंज वैल्यू होगी होगी। जहां यूज वैल्यू होगी उसका ये मतलब नहीं कि एक्सचेंज वैल्यू होगी होगी। यूज वैल्यू यानी हम खाना पानी जो कुछ हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनकी यूज वैल्यू, उसका मतलब ये नहीं कि एक्सचेंज वैल्यू होगी। हम पानी का एक्सचेंज नहीं करते, एयर का एक्सचेंज नहीं करते। दैट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ दिस टू रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू इज दैट use value, if the commodity has high use value, then it not necessarily said to have a higher exchange value. But if commodity has high exchange value, then it surely has some use value. यहाँ पे दूसरी बात आई कि अगर जिनकी यूज वैल्यू काफी हाई है तो उनकी एक्सचेंज वैल्यू काफी लो रहेगी। जैसे कि हम एयर वाटर जो यूज वैल्यू है, उनकी जो यूटिलिटी है को वो काफी हाई है, मगर उनकी एक्सचेंज वैल्यू कम है। पानी के बदले में पानी, पानी के बदले में पैसे, नॉट वैल्यूएबल। मगर वो नहीं है तो पता चलता है। एक दिन अगर सूरज उगना भूल जाए, पानी देना ऊपर वाला बंद कर दे, एयर ना मिले तो पता चलती है, मगर वो एक्सचेंज वैल्यू उनकी कम होती है। सेकंड, जो स्कैरसिटी वाली कमोडिटीज है, स्कैरसिटी वाली जो कमोडिटी है, उनकी जो यूटिलिटी वैल्यू है वो काफी लो है, मगर उनकी जो बार्टर वैल्यू है वो काफी हाई है। जैसे कि डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, उनकी जो वैल्यू है, उनकी वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू काफी ज्यादा है, मगर उसकी यूटिलिटी वैल्यू कम है। हमें पता है कि वो इतना यूटिलाइज नहीं होगा जितना हम वाटर चाहिए, हमें एयर चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर उसकी बार्टर वैल्यू देखे तो वो ज्यादा है। एंड सेकंड, जो भी टाइम, जो भी प्लेस है, उसके हिसाब से उनका बार्टर वैल्यू चेंज होता जाएगा। समय और उसके प्लेस के हिसाब से, टाइम एंड प्लेस अगर अलग अलग है तो भी बार्टर वैल्यू, सॉरी एक्सचेंज वैल्यू विल बी डिफर। सो दिस इज द कंक्लूजन पॉइंट हियर, दैट फर्स्ट इज हर एक यूटिलिटी वैल्यू अगर है उसका मतलब ये नहीं है कि एक्सचेंज वैल्यू होगी होगी। सेकंड, जिन कमोडिटी की स्कैरसिटी नहीं है उनकी यूटिलिटी वैल्यू, फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, ये जो काफी इजीली हमें मिल रही है, उनकी यूटिलिटी वैल्यू काफी ऊपर है यानी अप है, मगर उनके जो एक्सचेंज वैल्यू है वो काफी कम है। और थर्ड पॉइंट, जो स्कैरसिटी वाली कमोडिटी है, डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी,
उनकी बार्टर वैल्यू ज़्यादा है मगर उनकी यूटिलिटी वैल्यू जो यूज वैल्यू है वो काफ़ी लो है। तो अलग अलग टाइम के अलग अलग प्लेस के ऊपर भी उनका बार्टर वैल्यू अलग अलग हो सकता है। नाउ प्राइस, if a commodity is exchanged for money then such monetary exchange value is termed as a price। यानी जिस कॉमोडिटी के बदले में या सर्विस के बदले में हमें जो पैसे फाइनेंशियली यूनिट से हमें पैसे पे करने पड़ते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइस। आपके घर पे टेलीविजन होगा, मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, वॉशिंग मशीन होगा, कार होगी, व्हीकल हो गए, जो भी हम परचेस करते हैं उसके ऊपर जो हम फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स उनको यूनिट के बदले में देते हैं, दिस ऑल आर नोन एज ए प्राइस। सो हियर one point is complete for you: use value, exchange value, relationship between use value and exchange value, and price. Now you have to give the answer in comment box. How many way to represent or review for the value? I repeat again, how many way and which are the view of value can be determined. So there is a 2 points are there: use value and exchange value. So you have to comment in comment box or you have to note down in your notebook two viewpoints for the value, that is use value and exchange value. And now second point is goods and services. Goods and services. Goods and services, very very important, very easy. Goods and services. So first of all we are starting goods. गुड्स यानी आप सभी को पता है द कॉमोडिटी विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज गुड्स? फॉर वन लाइनर, कॉमोडिटी विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं और हम वो कॉमोडिटी को यूज करके सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं और उसके ऊपर हम खर्च करते हैं, कंजम्पशन हमारा होता है। दिस ऑल आर नोन एज ए गुड्स। सो कॉमोडिटी विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड इन इकोनॉमी, दे आर मीन टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ कंजम्पशंस। यानी जो भी चीज के ऊपर हम खर्च करते हैं और वो खर्च के ऊपर हमें सेटिस्फेक्शन मिलते हैं, जो हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दिस ऑल आर नोन एज ए गुड्स। फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम्स, consumer product, some of the luxurious product, these all are known as a goods. Now second is services. Services means here very easy for you, commodity which are intangible or do not have physical existence are called services. In economy they are meant to satisfy the needs of human life. यहाँ पे दो बात बताई गई है, जिससे हम छू नहीं सकते, सिर्फ उनकी हम फैसिलिटी भुगत सकते हैं, इस ऑल आर नोन एज ए सर्विसेज। यानी जिसके ऊपर किसी का कोई चीज को हम देख नहीं सकते, फिर भी हम उनके ऊपर पैसे खर्च करने से हमारी सेटिस्फेक्शन अगर हमें मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। पैसे तो देंगे गुड्स के बदले में, कार लेनी है तो 5-10 लाख जेब में चाहिए, दैट इज कॉल्ड गुड्स। मगर अगर बीमार हो गए हैं, हम बाईपास करना पड़ रहा है, हार्ट सर्जरी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन से अगर हम जा रहे हैं तो वी हैव टू पे फीस टू अवर डॉक्टर, अवर सोशल सर्वर आर नीड्स टू सम मनी फॉर रिकवर योर बॉडी। तो वो जो सर्विस दे रहे हैं उनके बदले में हमें कुछ पैसे नहीं, हम पैसे दे रहे हैं मगर कुछ कॉमोडिटी हमें नहीं मिल रही। इवन वी आर एंजॉय अवर फैसिलिटी, इट इज कॉल्ड गुड्स, सॉरी सर्विस। यानी सर्विस के बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो फैसिलिटी है, हमारी जो कोई भी मानो कि एजुकेशन है, अगर हम किसी क्राइम के अंदर फंस गए हैं तो लॉयर हमें जो भी एडवोकेट जो हमें एडवाइस देता है उसके बदले में हमें पे करने पड़ते हैं पैसे। दिस ऑल आर नोन एज ए सर्विस। नाउ सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स एंड सर्विस के अंदर गुड्स की हमने बातें की, उसके बाद उनके डेफिनेशन की बात की। अब नाउ गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स एंड सर्विसेज। सो व्हाट इज गुड्स, सॉरी व्हाट इज टाइप्स ऑफ गुड्स, विच टाइप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुड्स। आपको पता होना चाहिए कि गुड्स के टाइप काफी इजी है। सेक्शन सी के लिए या सेक्शन डी के लिए उनके टाइप्स ऑफ गुड्स आपको पूछे जाते हैं। तो गुड्स के टाइप्स कौन कौन से है? तो फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल goods and intangible goods, tangible and intangible goods. And second,
Non-economic goods and economic goods. Write down in your notebook types of goods. First, tangible goods, and second, intangible goods. Second, non-economic goods and economic goods. Very, very important. Goods have actually 2 points, but in 2 points there are physically, that is called tangible and intangible, and second one non-economic and second economic. So first is some goods have physical existence like ball, bat, television, refrigerator, stove, mobile phone. These all are known as a physical tangible goods. जो हम अच्छी तरह से उसको लॉन्ग रन तक अगर अच्छी तरह से हम उसे यूज करें और उनको देख सकते हैं, उनको फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनका, तो वो सभी गुड्स जो है वो टेंगिबल गुड्स है. और इनटेंगिबल गुड्स यानी दिस कैन बी मेजर्ड वेयर सम गुड्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन नॉट बी मेजर्ड कंटिन्यूअली, एंड देयर आर कॉल्ड सर्विस. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, मेडिकल, कंसल्टेंसी, ये सभी जो है, कुकिंग, ये सभी एक सर्विस है. उनके बदले में भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, मगर फिजिकल के अंदर हम देख सकते हैं सभी कमोडिटी को, उसको छू सकते हैं, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, एक्सेट्रा. दिस ऑल आर नोन एज ए फिजिकल, एंड those who are still only giving service to the society, these all are the example of intangible goods. So types of goods are very, very important. Now second is non-economical goods and economical goods. Goods which do not command exchange value are called non-economical good. Non-economical goods, that is those goods which do not command exchange value are called non-economic goods. They are abundant in supply and do not go through the economic process of production and distribution, though they are consumed by the people. For example, sunlight, air and so on. हम जो कमोडिटी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और काफी आसानी से हमें जो चीज मिल रही है, वो सभी जो गुड्स है वो फिजिकल गुड्स है, सॉरी नॉन इकोनॉमिकल गुड्स है, यानी जिनके सप्लाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और हमें आसानी से मिल जाती है. देयर इज नो एनी कंट्रोल ओवर सम ऑफ द कमोडिटी. वो सभी कमोडिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल गुड्स, सॉरी नॉन इकोनॉमिकल गुड्स. एंड इकोनॉमिकल गुड्स मींस जिन कमोडिटी के ऊपर किसी के कंट्रोल है, किसी का कमांड है, वो सभी कमोडिटी को हम इकोनॉमिक गुड्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल पेट्रोल, केरोसिन, उसके साथ साथ हम जो शुगर, उसके बाद जो ग्रोसरी, फूड, डॉक्टरी एडवाइस, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक गुड्स. कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ेगा. सनलाइट, एयर, इट इज वेरी फ्री, but exchange value of some of the other are directly commanded and controlled by the government, and demand and supply can be controlled and undertaken. These all are known as a non-economical goods. Now second, durable goods and perishable goods. Third point, I repeat again, there are mistake there. Not only 2 points for the goods, there are 3 points for the goods. First, economical good, non-economical goods, then physical, that is tangible, intangible goods, and last and four. I am heartily sorry for you all. There are 4 points of that. Goods have 4 points, not 2 points. Omit this if you have there. I am heartily sorry to all. There are 4 points for the goods. First, we can see here in the last page, that is tangible, intangible. Second, non-economical, economical. Then here durable, perishable, and fourth, private and public goods. So very, very important. You have first durable goods. There is no need of any explanation about durable goods. As a long term, long period, it is not quality of perishable. It is called durable goods. For example, fridge, television, vehicles, car. These all are the durable goods. And the durable goods can be used for a long period of time. For example, shoe, clothes, etc. And perishable goods cannot be store in the long run period. It will be 100% perish in after some times. For example, milk, fruit,
जो चीज हम लॉन्ग टाइम तक उसे प्रिजर्व नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते और बिगड़ जाने के चांसेस है, डेट इज कॉल्ड पेरिसेबल गुड्स। और जो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहती है वो हमें ड्यूरेबल गुड्स के अंदर हम रख सकते हैं। नाउ प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, वेरी वेरी इजी फॉर यू। प्राइवेट गुड्स, now other question are there, another question are there, you have to comment me in your comment books. Give the example of private goods. I repeat again, give the example of private goods. You have to mention in comment box or you have to write in your notebook what is private goods and give the example of private goods. तो private goods क्या है? The ownership and the utility area are very very in terms of some of the individual. It is called private goods. Private goods are goods which can be possessed and owned by a private individual. She or he take all the decision regarding these goods. It is called private goods. आपकी कार, आपके लैपटॉप, आपका घर, it is in on possession, आपके खुद की मालिकी की है, उसका यूज आप कर सकते हैं, उनके ऊपर आपके पूरे राइट्स है. These all are known as a private goods. अगर आप अपने टेक्स्ट बुक लेके आते हो, अपनी डाइजेस्ट लेके आते हो, रेफरेंस बुक लेके आते हो, तो उसके ऊपर पूरी आपकी ऑनरशिप है, आपने पेड किए है वो पैसे, तो दिट इज प्राइवेट गुड्स, योर गुड्स. और वही बुक अगर हम लाइब्रेरी के अंदर पढ़ेंगे तो गेटिंग, अगर वही टेक्स्ट बुक को अगर लाइब्रेरी के अंदर हम पढ़ेंगे, इट इज अ पब्लिक गुड्स. सो प्राइवेट गुड्स, दैट इज private goods which can be possessed and owned by private individual, and all decision regarding this, it is their own. And second, on the other side, public goods can be used by many individuals at the same time. The possess and the characteristics of the joint demand and the collective consumption, such goods are jointly demanded by the many people. If the individual use it the other cannot be excluded from its use, and in this way they were collective consumption. यहाँ पे हम देखें तो जो कंज्यूमेबल प्राइवेट और पब्लिक गुड्स है, तो पब्लिक गुड्स के अंदर हमने बात की कि जो हमारी गवर्नमेंट की ओनरशिप है, जिसका यूज यूटिलिटी हर एक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रेलवे, गार्डन, ये सभी के यूज है. हम ऐसा नहीं बोल सके मेरा गार्डन ये मेरी रेलवे, नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज ओनरशिप आर नॉट अवर, इट इज फॉर ऑल पीपल, सो इट इज कॉल्ड पब्लिक गुड्स. Now consumer goods and producer goods, very very important. Consumer goods and producer goods. So there are 5 points are there. I repeatedly mistake here, and you all are alert now. You all have to alert. There are how many points are there? Everyone must alert now. There are 5 points. I repeatedly mistake there, and intentionally I am going to mistake. Why? Because you all are aware that 1, 2, 3, 4, 5 here. You can see textbook wing earlier, then you can find out 2.3.1, 2.3.2, then 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5. So here 5 point over here. So it is very very important for section E questions. First is, I repeat again, first is tangible, intangible, economical, non-economical goods, then public goods, private goods, durable goods, perishable goods, and now consumer goods and producer goods. Consumer goods, consumer यानी डायरेक्टली हम जिसका यूज करें, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल कमोडिटी, यानी जिसके ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं करनी है, डायरेक्टली वी कैन यूज. गुड कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम गुड्स एंड दिस गुड्स इज कैपेबल फॉर ऑफ सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर वांट डायरेक्टली, देन इट्स कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स. कोई भी उसके ऊपर प्रोसीजर नहीं करनी है, लाए डायरेक्ट, शर्ट लाए पहन लिया, टी शर्ट लाए पहन लिया, टेलीविजन लाए डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, रेफ्रिजरेटर लाए डायरेक्ट प्लग इन किया, वो स्टार्ट. दिस ऑल आर द कंज्यूमेबल गुड्स. सो कंज्यूमेबल गुड्स आर like foods and grocery or some of the clothes are there. Then second is productive goods, producer goods, that is called productive goods, producer goods. When a goods is used at intermediate stages of the production of the final goods, when it is purchased by a producer to produce a final goods, when it is directly consumed by the consumer, but this goods help in the production of a final goods, then such a goods is called producer goods. यानी जो कमोडिटी बनाने में हम यूज करते हैं और
कमोडिटी बनने के बाद हम जिनका यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर की बात करें, जो खेत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो फार्मिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वो ट्रैक्टर बनाने के बाद वही ट्रैक्टर अगर हमारी फसल अच्छी करने में हेल्प कर रहा है, अगर हमारी फसल अच्छी हो रही है, और ट्रैक्टर की जगह हम अगर बुलक कार्ट का भी यूज करते हैं, तो बुलक कार्ट के जो बाकी के पार्ट है, बुलक की जगह अगर जो भी हम एक्सेस का यूज करते हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो केमिकल का यूज करते हैं, उसके बाद बहुत सारे थ्रेशर का हम यूज करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वो सभी गुड जो इंटरमीडिएट गुड्स है जिसके यूज से दूसरी कमोडिटी बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। अगर वो नहीं है तो बाकी क्या हम नहीं बना सकते। अगर हमें सिंपल एग्जांपल हम दे, अगर हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल को बनाने के लिए भी एक मशीनरी चाहिए, और जो मशीनरी है दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। मगर जो मोबाइल बन के हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। सो आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स वेरी इजी। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्ट यूज, नो एनी टेंस, आपको डायरेक्ट लेके आना है, यूज करना है। मगर प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, जो प्रोडक्शन करने के लिए इंटरमीडिएट मीडिया बनता है और उसको यूज करके दूसरी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं, तो वो जो प्रोडक्शन जिस प्रोसीजर से हुआ उसके अंदर इंटरमीडिएट जो भी हम यूज कर रहे हैं इट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। Now these 5 point top types of goods is over here. Now second point, wealth and welfare. Wealth and welfare, very important. Wealth word is very easy. In chapter number 1 we are already discussed about wealth. I hope you can understand what is wealth. In which definition we can find out this word, that is called एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में उनकी जो बुक है उसका नाम ही था वेल्थ ऑफ नेशन, राइट। तो वेल्थ के अलग अलग जो भी मीनिंग है और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें अभी स्टार्ट करने हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेल्थ एंड द वेलफेयर फ्रीक्वेंटली अपीयर इन द इकोनॉमिक डिस्कशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स एंड हेंस इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज meaning and characteristics of wealth. Since the time when Adam Smith, remark, underline, very important, since the time when Adam Smith gave the definition of economics in the context of wealth, the subject of the wealth become extremely important in the economics. Why? Because Adam Smith, the father of economics, and he used this word in economics, so it is very important. Now, meaning of wealth. In the understand the Alfred Marshall's idea, wealth is something which is useful, very important. Mark it important and write down in your notebook. What is the definition of wealth? What is the definition of wealth? The definition of wealth according to Marshall, that is idea, Marshall's idea, wealth is something which is useful, so scarce, capable of getting exchanged, and can be owned by someone. I repeatedly give the definition of the Alfred Marshall, that is useful, first word, second scarce, second word, capable to get in exchange, third word, and can be owned by somebody, fourth word, owned by somebody. These are the basis point of its characteristics. So let's we start. First characteristics is it should be possess the characteristics of usefulness. इट मस्ट बी यूजफुल इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। वेल्थ जो है वो यूजफुल आनी चाहिए। जैसे हम कमोडिटी कोई भी परचेस करते हैं, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हमारे घर पे फैन हो, ट्यूबलाइट हो, CFL हो, टेलीविजन हो, या कोई भी हम डेटा जो यूज करते हैं मोबाइल के अंदर, जियो के सिम कार्ड अगर हम लेते हैं या कोई भी सिम कार्ड का यूज करते हैं, जिस कमोडिटी के ऊपर हम जो खर्च करते हैं, इट मस्ट बी यूजफुल। जो वेल्थ का फर्स्ट क्वालिटी है, वेल्थ की जो फर्स्ट क्वालिटी है, दैट इज यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी, सेटिस्फैक्शन नीड्स फ्रॉम द ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर द वेल्थ। जो वेल्थ वो परचेस करेंगे, उसके ऊपर खर्च करते हैं, तो उसको पूरा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। आपके जेब में पैसे है 5 लाख, आपने कार ली 5 लाख की, और अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इट इज वर्थलेस। वो वेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो वेल्थ मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस। सेकंड, इट शुड बी स्केयर। अगर आसानी से सब कुछ मिल जाती है तो वेल्थ की इंपॉर्टेंस कम है, राइट। सो दोस कमोडिटी व्हिच आर स्केयर in supply in relation to their demand and possess exchange value. Besides
being useful are called wealth. Goods which are useful but not scarce and do not have exchange value like sunlight, air are not called wealth. जो सनलाइट एयर के बिना नहीं रह सकते मगर उनकी एक्सचेंज वैल्यू जीरो है, आसानी से मुफ्त में मिल जाती है, सर्वसुलभ है वो सभी कमोडिटी, तो ऐसे कमोडिटी की अगर स्कैर्सिटी नहीं है तो उनको वी आर नॉट कैलकुलेट एज ए वेल्थ. सो वन पॉइंट इज ऑल्सो देयर. Is sunlight and air is considered as a wealth? Yes or no? Why? I repeat again. Is sunlight and air is called as a wealth? So answer is no. Why? Because the exchange value is zero and it should not be scarce. It is easily we can get. Now third point. It should have physical or intellectual existence. Physical existence होना चाहिए. Wealth should have physical existence must. The ability to understand the aptitude of human being, their physical abilities, etc. are intimate abilities and a set of human being and are usually not exchanged. In today's world, however, the intellectual ability of human being like the ability to create new ideas are exchanged for money in the market, and hence the intellectual ability to create novel idea and goods is called wealth. Yet the ability of the scientist so think is her quality and not wealth, but the novel idea created by the scientist is a wealth. काफी इंपॉर्टेंट बात हो गई है वेल्थ की यहाँ पे. जो मार्शल ने वेल्थ की डेफिनेशन दी, उसके बाद जो बहुत उनका यूजफुलनेस की बात हुई, उनके एक्सचेंज वैल्यू की बात हुई, उनकी स्कैरसिटी की बात हुई, उसके साथ साथ जो अच्छी तरह से हमें जानने को मिली वो बात है उनके वेल्थ. इट शुड हैव फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस. जो अपने थिंकिंग से आगे आते हैं उनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती. इन शॉर्ट यानी हम ऐसा बोले कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो काफ़ी नेचर में अच्छा है, तो उनकी ये एक क्वालिटी हुई उनकी. इट इज़ नॉट टचेबल, इट इज़ ओनली वी कैन फील इट. तो वेल्थ इज नॉट लाइक दैट. उनके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो हम बाहर से उनको टच कर सके, उनके ऊपर हम अपनी ऑनरशिप हम पेश कर सके. जैसे साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं और वो सभी उनके एक ऑनरशिप कहलाती है, वो सभी उनकी वैरायटी जो वो रिसर्च करते हैं वो सभी उनकी एक ऑनरशिप होती है. दैट वाई आवर साइंटिस्ट इज आवर वेल्थ. वाई? बिकॉज दे क्रिएट सो मैनी. तो वेल्थ के जो हमने सेकंड पॉइंट कंप्लीट किए. नाउ इट शुड वेल्थ constitutes goods which are capable of exchange. फोर्थ पॉइंट के अंदर है. सेकंड पॉइंट हमने कर दिया स्केयर वाला, उसके बाद फिजिकल के वाले में हमने कंप्लीट किया. नाउ वेल्थ constitutes goods which are capable of exchange. Wealth is an economic concept and therefore must be capable of getting exchange. Wealth is a means to satisfy present as well as future consumption and other needs, and therefore must be capable of exchange. A house purchased today satisfies the present needs of housing and can be sold in future to buy other goods. Precious metal, lands, etc. also possess these characteristics. यानी वेल्थ की जो एक्सचेंज वैल्यू है फ्यूचर में होनी चाहिए. जो भी हम यूज करते हैं घर पे अगर हम रहते हैं तो प्रेजेंट में वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मगर वो बेच के दूसरी हम प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकते हैं. अगर आपके पास लैंड है, आपके पास मेटल लैंड है या कोई भी मटेरियल है, आपके पास जो प्रीशियस है, गुड्स, गोल्ड है, ज्वेलरी है, सिल्वर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द exchange value of this type of commodity is higher in the future. So it will be helpful to purchase another commodity with the help of this type of exchange value. So अगर आपके पास ऐसे पैसे है, अरे ऐसी गुड्स है, कमोडिटी है, तो उनकी एक्सचेंज वैल्यू भी बढ़े. इट इज कॉल्ड वेल्थ. उसे हम वेल्थ बोल सकते हैं. अगर फ्यूचर में किसी की वैल्यू अगर अप नहीं हो रही है तो इट इज वर्थलेस. वो वेल्थ नहीं, हमारे लिए कुछ काम की नहीं है. इट इज नॉट डिनोटेड एज ए वेल्थ. फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस ड्यूरेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरेबिलिटी, द कमोडिटी विच आर stay long run with us, it is called quality of durability.
उसे ही हम वेल्थ कह सकते हैं। एक साल में टूट गई, एक साल में हमारा साथ छोड़ दे, तो वो वेल्थ वेल्थ नहीं है। गुड विच आर पेरिश आफ्टर सिंगल यूज इट कैन नॉट बी यूज एज ए फ्यूचर ट्रांजेक्शन, इट देयरफॉर इट इज नॉट वेल्थ। वेल्थ मस्ट possess durability. Durable goods can be used for the exchange and satisfaction the future needs, so that it must be durable. इट मस्ट बी ड्यूरेबल। जैसे कि हम लैंड, हमारा जो फ्लैट है या हमारे पास जो ज्वेलरीज है, इट इज वन टाइप ऑफ ड्यूरेबिलिटी इन दैट commodities. So these are known as a durability. So there are 5 points are there here. First point is, first it should be possess the characteristics of usefulness. First is usefulness, second scare, third exchange, intellectual or physical existence, fourth it is goods and capable to exchange, and 5 durability. Very very important for section E. Only you have to write down its point in your notebook. I repeat again, everyone keep in mind that you have to just write the characteristics of wealth, and after that you have to note it only its point. It should be possess of characteristics of usefulness. Second point is it should be scarce, it should have physical or intellectual existence. Fourth, wealth constitutes goods which are capable of exchange, and fifth point is durability. Only you have to dictate its main point in your notebook. Now, types of wealth, very 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 important for you. Types of wealth, यहाँ पे आपको 2.6 के अंदर 1 2 ये 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2, उसके बाद डायरेक्ट है वेलफेयर। तो टाइप्स ऑफ वेल्थ वेरी वेरी इजी। इंडिविजुअल वेल्थ, सोशल वेल्थ, नेशनल वेल्थ, इंटरनेशनल वेल्थ। बेसिकली 2 पॉइंट वेल्थ आर डिवाइडेड इनटू 2 पॉइंट, बट देयर आर सब पॉइंट आर आल्सो द इंडिविजुअल, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल। यानी जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके 2 ही पॉइंट हैं, मगर उनके अंदर जो पॉइंट है उसको भी हमें डेफिनेशन में क्लियर करना है। इंडिविजुअल वेल्थ, wealth under the ownership of an individual and meant for the private consumption is called individual wealth. अगर आपके घर है, आपके पास मोटर व्हीकल है, आपके पास बाइक है, आपके पास एक्टिवा है, आपके पास अपने लैपटॉप है, इट इज योर ऑन possession, on ownership, this all are known as a individual wealth. आपकी खुद की, हमारी अपनी जो जायदाद है, हमारी जो भी है, that is called individual wealth. Wealth under the ownership of society and meant for collective consumption is called social wealth. For example, डैम जो हर एक के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं, हर एक जिसका यूज करते हैं। सिर्फ हम यूज करें तो अपनी बन गई, मगर जिसके ऊपर हर एक का राइट है, हर एक की ऑनरशिप है, हर एक उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दिस ऑल आर नॉन एज ए सोशल वेल्थ। को पूरी सोसाइटी के लिए बनती है। इट इज अ वन टाइप ऑफ कलेक्टिव कंजम्पशन, नॉट इंडिविजुअल कंजम्पशन दैट, so it is called social wealth. Very very easy point for you as per concern of 11th standard and general stream. These two definition is very very easy. It may be scoring more than 2 to 3 marks very easily. तो ये बात ध्यान में रखना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना वीडियो को। 2-3 बार अगर आपने देखा और हर एक वर्ड मेरे आपके कान के अंदर से आपके दिमाग तक चले गए, तो इकोनॉमिक्स में आपकी जीत पक्की है। नेक्स्ट, नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। Wealth belonging to the nation and the possessed and the treasured by the nation is called national wealth. It helps generate exchange value directly or indirectly for the nation. For example, river, mountain, literature and scriptures. For international wealth is that wealth which is not owned by one nation but belong to whole world. Under 88 country अगर जिसके ऊपर ऑनरशिप रख सकती है तो ऐसी वेल्थ है इंटरनेशनल वेल्थ। कोई भी अगर हम बाउंड्री को ब्रेक करें, बाउंड्री के बाद जो भी ओशन आए वो पूरे नेशनल के नहीं है, पूरे वर्ल्ड के, पूरे यूनिवर्सल के है। तो जिसकी ऑनरशिप किसी एक नेशन की नहीं है, अलग अलग नेशन की है, वो हम कहेंगे इंटरनेशनल वेल्थ। जैसे ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, WMF, वर्ल्ड मॉनेटरी फंड, these all are the international wealth. So I repeat again, there are one question for you. You have to comment in your comment box that give the example of national wealth and international wealth. I repeat again,
Not down in your notebook. Give the national wealth and international wealth. I repeat again. Give the example of national wealth and international wealth. So I repeatedly give you 2 times. If there is a rivers, mountain, some of the minerals and some of the public property are known as our national wealth. And the ownership of various nations is called international wealth. For example, ITO, International Trade Organization, ICC, International Chamber of Commerce, WMF, World Monetary Fund. These all are international wealth. Now, welfare, very important word, welfare. वेलफेयर क्या है, वेलफेयर से क्या हो सकता है, वेलफेयर किसके डेफिनेशन के अंदर आए थे, चैप्टर 1 के अंदर कौन सा हमारा चैप्टर था जिसके अंदर वेलफेयर वर्ड आया था. इफ वी नो द डेफिनेशन ऑफ मार्शल ने अपनी डेफिनेशन का वेलफेयर वर्ड का यूज किया था, तो वेलफेयर वहां से आया है. नाउ we are going to discuss about welfare means enhancement of the life situation. आपके अंदर कुछ अलग से अच्छा होना, वेल बीइंग, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना, पहले के मुकाबले आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाना, एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज यूज्ड बाय ऑल फिलोसॉफीज फ्रॉम स्पिरिचुअल साइंस टू इकोनॉमिक. हमारे संत कहते थे कल्याण हो आपका, कल्याण हो डेट इज आपकी सभी तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो, आपको कुछ भी दुख ना पड़े, अच्छी तरह से आप आगे बढ़े. इन सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स यू आर इकोनॉमिकल आगे बढ़ सकते हो आप, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है, यू आर नॉट रिमेन बिलो द पॉवर्टी लाइन. दिस ऑल आर द विशेस फॉर एस टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर. नाउ all human activities, economic and non-economic, are ultimately done with the purpose of improvement of the life. Welfare can be measured qualitatively in the context of growth and quantitatively in the context of growth and qualitatively in the context of development. Here two words is very important, very important. You mark it important and underline it. Welfare can be measured quantitatively. Here quantitative, that is all quantum, टोटल प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, यानी नंबर फिगर में अगर कोई इंप्रूवमेंट की बात हो रही है. क्वांटिटेटिवली दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है. स्टैंडर्ड 12 के अंदर 9 डिवीजन पॉइंट है, एक नजर आते हैं फिर भी 9 डिवीजन पॉइंट है, हम 12th में उनका डिस्कस करेंगे. मगर यहाँ पे अगर हमारे जो इंक्रीमेंट की बात आई, इंक्रीज की बात आई, कुछ बढ़ाने की बात आई, तो वो ग्रोथ है. नेशनल इनकम बढ़ाई हमने, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, हमारी सेविंग बढ़ी, हमारा एक्सपेंडिचर कम हुआ, हमारी पॉवर्टी कम हुई. दिस ऑल आर इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वांटिटेटिवली. बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया के बारे में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट और डेवलप्ड कंट्री के बारे में हम देख रहे हैं ग्रोथ. तो डेवलपमेंट में क्या बात हो सकती है, क्वालिटेटिवली, यानी इंडिविजुअली वेलफेयर और कलेक्टिव वेलफेयर की अगर बात होती है तो उसके अंदर जो हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो अगर नेशनल इनकम तो बढ़ती है मगर उसके साथ साथ क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हमारी पर कैपिटा इनकम क्या इक्वली हर एक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. वेलफेयर जो बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ने की नहीं, बढ़ने की तो बात होगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, हमारी इनकम बढ़े, हमारी नेशनल इनकम बढ़े, वो तो बात होगी, मगर साथ में वो नेशनल इनकम बढ़ने से क्या हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है. अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना ही चाहिए. और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, poor not become a poorer and rich not become a richer. So equally balance अगर हो रहा है तो it is a equal distribution of national income, that is called qualitatively context of development. Now in economics subject of the welfare can be studied as a individual welfare and collective welfare. When an individual seek to make effort to improve her or his standard of living and well-being, that is called इट इज इंडिविजुअल वेलफेयर. व्हाट इज इंडिविजुअल वेलफेयर, यानी कोई एक इंडिविजुअल अपने लाइफ की
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, अपने घर के सभी मेंबर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहता है और अच्छी तरह से वो जीना चाहता है इकोनॉमी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल वेलफेयर. When the nation and the government seek to improve growth, development, etc., it becomes a subject matter of collective welfare. अगर पूरा कंट्री, पूरे नेशन, पूरी गवर्नमेंट हर एक का इंप्रूवमेंट करना चाहती है, हर एक के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना चाहती है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर. सो देयर आर 2 पॉइंट फॉर द एग्जांपल, फॉर द differences are there. What is individual welfare and what is collective welfare for the section B? You have been asked in 1 marks. individual welfare किसे कहेंगे? अगर इंडिविजुअल पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहता है, अपने फैमिली का गुजारा अच्छी तरह से करना चाहता है, तो वो जो बनती है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल वेलफेयर. अगर पूरे राष्ट्र की बात करें, पूरे गवर्नमेंट की बात करें, अगर वो पूरे नेशन को डेवलप करना चाहता है तो वो जो डिस्कशन पॉइंट में होगा दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड बिकम ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर? वेल्थ एंड वेलफेयर के बीच का रिलेशनशिप क्या है? तो वेल्थ और वेलफेयर जो है वो एक दूसरे के अलग अलग वर्ड है, मगर फिर भी हम दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा कि वेल्थ क्या है और वेलफेयर क्या है. तो फर्स्ट, generally when wealth is increased, welfare increases. As more wealth means higher capacity to generate monetary money. यहाँ पे जो बात हो रही है, अगर आपकी वेल्थ बढ़ती है तो नेचुरली आपकी वेलफेयर बढ़ेगी. पैसे बढ़ते हैं तो आप पहले अगर कीपैड वाले मोबाइल परचेज करते तो स्मार्टफोन पे आ गए हैं हम, बराबर है. तो वो कैसे हुआ? क्योंकि हमारी वेल्थ बढ़ी, हमारे पैसे हमारे हाथ में ज्यादा आए, तो हमारा वेलफेयर यानी हमारा जो इंडिविजुअल वेलफेयर हम बढ़ा रहे हैं, दैट इज इंक्रीज अवर वेलफेयर. So if when the wealth is increased, welfare increase, as more wealth means higher capacity to generate monetary value, greater power to exchange goods or purchasing power for the owner, and hence greater well-being. This is the largely true in case of individual. But when the wealth of the nation increase in the form of national income, the welfare of the people will increase only if this national income is equality distributions among the all sections of the society and among the all sectors. Beside, the nation's welfare also depend upon the social and cultural formation, and hence there is a not always direct relationship between wealth and nation. अगर wealth and nation की बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट से हमें डिस्कस करने हैं, इंडिविजुअल वेलफेयर और कलेक्टिव वेलफेयर के बारे में. अगर इंडिविजुअल वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, हमारी इंडिविजुअल इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो इनिशियली हमारा वेलफेयर बढ़ेगा वेल्थ बढ़ने के लिए. मगर नेशन के लिए हम बात करें, नेशनल इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम से हमारे जो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास पर्सन है, उन तीनों को इक्वलाइजेशन, अगर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, then only it should be said that there is a welfare of collective welfare, or it is comes as a, if wealth is increased then it is known as a welfare as a society. So nation के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, कलेक्टिव वेलफेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एवरी टाइम देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर. इट इज मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड कलेक्टिव. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर हियर. नाउ वेरी इजी पॉइंट, and that you all learned from standard 10 in SS, factors of production. There are basically 4 factors of production in any country. If there are developing country or developed country, there are basically 4 factors are there, mainly that is land, labor, entrepreneur and capital. Repeat again, land, labor, entrepreneur and capital. Land, labor, entrepreneur and capital. I repeat again, you have to comment me in comment box, or you have to write down in your notebook how many factors of production. How many factors of production? Only in one word, land, labor, entrepreneur and capital. Repeat again, not in your notebook. What are the factors of production? There are 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. Now first, as per Alfred Marshall, what is land, and give the definition and characteristics of land. Very important. You mark or you highlight or you note down in your notebook. Give the definition of land and what are the characteristics of land. So first, as per our thinking, land is the upper layer of the world. जो हमारी जो लैंड है, लैंड के ऊपर का जो लेयर है, जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उसे हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि लैंड है. मगर एज पर कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, टोटली डिफरेंस मीनिंग in terms of economics.
In the general understanding, land may means of the surface of the earth livable for mankind. However, in economics, the concept of the land is more inclusive. According to Marshall, all natural assets which help in production, very important. I highlight here for you, and you also highlight in your textbook and note down the definition. According to Marshall, in one sentence you been asked give the definition of land according to Marshall. So you have keep in mind that I repeatedly repeat here. अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने दिमाग को, इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक हम जा रहे हैं और टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंस बात है मैं 2, 3, 4 बार दोहरा रहा हूँ आपको, तो अगर थोड़ा सा आप अच्छी तरह से उसको मैनेज करेंगे यू विल डेफिनेटली विन इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट. नो नीड ऑफ एनी पर्सनल कोचिंग और नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ, you just keep watch this video 2 to 3 times and you can easily find out all the questions from this. So according to Marshall, repeat again, all natural asset which help in production और economic activity, जो भी नेचर से हमें चीज मिली है और वो नेचर से मिली हुई कोई भी चीज प्रोडक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अगर वो यूज होती है तो वो लैंड है. अकॉर्डिंग टू मार्शल, आई रिपीट अगेन, ऑल नेचुरल एसेट, नेचुरल एसेट आपको पता है कौन कौन से नेचुरल एसेट है, जैसे कि रिवर, माउंटेन, एयर, एटमॉस्फेयर, दिस ऑल आर गिवन बाय नेचर. सो ये सभी एसेट जो है अगर वो प्रोडक्शन करने में या इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंस्टिट्यूट करने के लिए अगर वो हेल्प करती है तो इज इट कॉल्ड land. That is climate of the particular part of the earth, water, resources, fertility, minerals, resources are known as a land. Keep in mind that पहले हम ऐसा बोलते थे कि जो हमारी अर्थ है वो लैंड है, नहीं, मगर यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी चीज प्रोडक्शन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कुछ ना कुछ हेल्प करती है, दिस ऑल आर कंडक्टेड एंड कंस्टिट्यूट एज ए लैंड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी फॉर यू, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स. It is a natural gift. First point is it is a natural gift. Land is gift of a nature and it not be man-made. काफी अच्छा है, पॉइंट ही क्लियर है अपने आप कि जो भी ऊपर से मिला है उनका प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जीरो ही है. जो ऊपर वाला देता है ना वो जीरो ही देता है, जीरो पैसे में देता है, फ्री में और अनलिमिटेड देता है और हम उनको बना नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल. इसीलिए हम ऊपर वाले को काफी याद करते हैं कि जो वो देता है उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी जीरो होती है और वो नेचर बेस्ड होती है और उनका हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते. किसी साइंटिस्ट ने लैंड बनाई है, किसी साइंटिस्ट ने एयर बनाई है, नो, नॉट पॉसिबल. सो लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इट नॉट मैन मेड. सेकंड, द टोटल सप्लाई ऑफ द लैंड इज फिक्स. जो भी हमारे पास लैंड है उनके जो सप्लाई है वो स्टेडी है, नॉट इंक्रीज बाय मैन. उनको हम इंक्रीज भी नहीं कर सकते, उनको हम डिक्रीज भी नहीं कर सकते. ओनली एंड ओनली वी हैव टू यूज इट वेरी सेंसिबिलिटी. हमें उनको अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ यूज करना है. जो भी हम यूज करते हैं अच्छी तरह से, अगर वो रिसोर्सेबल है, रिन्यूएबल है तो अच्छा है, नहीं है तो उसका हमें संभल के उनका यूज करना पड़ेगा. और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत सारी हमारी इंटरनल जो डीप में हमारी अर्थ के नीचे जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उनको हम अच्छी तरह से यूज न करके उनका मिसयूज भी करते हैं, तो एक खतरे की घंटी है इकोनॉमी के लिए. सो टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स. हम खींच के भी बढ़ा नहीं सकते और छोटी भी नहीं कर सकते. लैंड इज जियोग्राफिकली इमोबाइल. मोबिलिटी हर एक कैरेक्टर के अंदर ये कंप्लीट होगा. मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर आर टू टाइप ऑफ मोबिलिटी इन इकोनॉमी. फर्स्ट इज जियोग्राफिकल एंड सेकंड इज वोकेशनल. जो जियोग्राफिकल मोबिलिटी की बात होती है लैंड की जीरो है. क्यों? अगर ऐसा हम सोचे कि पंजाब के अंदर काफी लैंड अच्छी है और वहां की लैंड अगर गुजरात में ले आए तो अच्छी तरह से वहां जैसी फसल हो रही है यहाँ भी होगी. सेकंड, कश्मीर के अंदर बहुत सारे एप्पल अच्छे हम ग्रोथ करें तो वो लैंड उठा के यहाँ ले आए तो भी अच्छा होगा. दिस ऑल आर नॉट पॉसिबल बिकॉज जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लैंड इज टोटली जीरो. हम यहाँ की लैंड को दूसरी जगह नहीं रख सकते और दूसरे की लैंड को यहाँ भी नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि इट इज देयर ऑन एंड नेचर आर नेवर गोइंग टू change with one
स्टेट टू अनदर स्टेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे के साथ उसका एक्सचेंज नहीं कर सकते, और इट इज जियोग्राफिकल मोबिलिटी इज टोटली जीरो। ना वोकेशनल मोबिलिटी, व्हाट इज वोकेशनल मोबिलिटी? लैंड हैव देयर ऑन वोकेशनल मोबिलिटी, यानी किसी एक लैंड के ऊपर वी आर बिल्ड अप बिल्डिंग, वी कैन बिल्ड playground, we can build hospital, library, so it is called vocationally mobility. So land have vocationally mobility, किसी एक जगह हम मल्टीपल थिएटर भी देख सकते हैं, उसी लैंड के ऊपर अगर उनको डिमोलिश करके हम हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, या लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, प्लेग्राउंड भी बना सकते हैं, या मंदिर भी बना सकते हैं। दिस ऑल आर हैव देयर ऑन क्वालिटी। सो लैंड geographically mobility is totally zero, but vocational mobility is there. Fourth point, all types of land are different in fertility, climates and conditions, so on. हर एक लैंड की फर्टिलिटी एक जैसी नहीं है। अगर हम डेजर्ट की अगर लैंड को देखें या दूसरे जगह की अगर लैंड को देखें, तो हर एक में वैरायटी है, हर एक की प्रोडक्टिविटी अलग अलग है, फर्टिलिटी रेट अलग अलग है, और क्लाइमेट एंड कंडीशन भी हर एक लैंड के अंदर अलग अलग होती है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू, because every land have their own establishment and fertility. Second, the remunerations of the land as a factors of the production is called rent. Very important. हर एक फोर्स ऑफ फैक्टर को अपने रिटर्न्स जो पैसे से मिलते हैं वो अलग अलग नेम से है, मिलते हैं पैसे ही, मगर लैंडलॉर्ड है उनको लैंड रेंट मिलेंगे, अगर कैपिटलिस्ट है तो उनको इंटरेस्ट मिलेंगे, अगर कोई लेबर है तो उनको वेजेस मिलेंगे, और अगर इंटरप्रीनर है तो उनको प्रॉफिट मिलेंगे। सो remunerations of the land as a factors of production is called rent. So here your complete land characteristics, and now we are going to second point, very easy for you, labor that is physical or mental, जो भी इकोनॉमी के अंदर काम करते हैं कुछ इकोनॉमी रिवॉर्ड्स पाने के लिए, दे वांट टू अर्न रिटर्न्स विच डन अंडर इट्स इकोनॉमी और सम ऑफ द सुपरविजन, सो इट इज कॉल्ड लेबर। फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमन इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स, जो उनको चाहिए, कोई भी आदमी जो भी वर्क करता है वो हाथ हिलाने के लिए तो नहीं करता, दूसरे जगह वो जाता है, अगर वो कुछ काम करता है अपने स्किल को यूज करता है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। अगर हम बात करें फार्मर की, अगर हम बात करें लेबर की, कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर वो सप्लाई करते हैं लैंड सैंड को या मटेरियल्स को या ब्रिक्स को, तो ऐसे नहीं करेंगे, वो फिजिकल लेबर है, उनको कुछ करने के बाद उनको पैसे चाहिए, उनको वेजेस चाहिए। तो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल का मतलब मेंटल लेबर, टीचर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, उसके बाद डॉक्टर्स, ये सभी अपनी अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं। किसी पेशेंट का बाईपास करना है, किसी पेशेंट को अगर उनके हार्ट सर्जरी करनी है, तो दे नीड सम स्पेशल नॉलेज एंड देयर इज अ डेंजर वर्क बिकॉज इट इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ ऑफ सम ऑफ द पेशेंट्स। तो वो अपना दिमाग लगाता है, वहां कुछ भागदौड़ी नहीं हो रही है, वहां पे उनका दिमाग चल रहा है और दिमाग के पैसे है। तो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमन इन ऑर्डर टू अर्न returns which is done under the supervisions by some authority is called labor. Now, characteristics of labor. Labor cannot be separated from the laborer. Very important. Labor को laborer से हम जुदा नहीं कर सकते. Labor is perishable. Labor and laborer are inseparable. Labor cannot be separated from the laborer. अगर हम ऐसा सोचे कि यहाँ बैठे बैठे हम वहां स्कूल में जाके पढ़ के आए, नॉट पॉसिबल, हमें जाना ही पड़ेगा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर कोई पर्सन ऐसा सोचे कि ये ब्रिक्स 10 to 15 ब्रिक्स है, वो हम अपने आप वहां 3rd फ्लोर तक ना जाए और ब्रिक्स अपने आप चली जाएगी, नॉट पॉसिबल, उनको वर्क करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर्स, नॉट पॉसिबल। इन इकोनॉमी labor cannot be stole. Laborer has remained where he has to labor. Thus, labor and laborer are inseparable. Now, second point, labor cannot be stole in way of labor. Effort done by laborers, it is perishable. श्रम करना ही पड़ेगा हमें, श्रम नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला।
और वो डे टू डे करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में पास होना है तो डेली बेसिस पे हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं सोच सकेंगे हम कि 4-5 दिन नहीं पढ़ेंगे और एक दिन में सभी ये जो 2 चैप्टर तक हम आ गए हैं वो पूरा कर देंगे। नॉट पॉसिबल। डे टू डे अगर हमें भी पढ़ाना है तो एक दिन में पूरी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक हम नहीं कंप्लीट कर सकते। तो लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। एक दिन गया तो वो लेबर का वो उनका गया ही समझो। उनको दूसरी बार उनकी चांसेस नहीं मिलने वाले हैं, वो स्टोर नहीं हो पाएगा। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। और अगर एक दिन हमने मेहनत नहीं की तो उनका वापस वो टाइम आने वाला नहीं है। वाई? बिकॉज लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। हमारा लेबर चला जाएगा। अगर टीचर या लॉयर या कोई भी इकोनॉमिकल इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसा सोचे कि हम यहाँ पर बैठे बैठे कुछ ना कुछ काम करें तो नॉट पॉसिबल। उनको वहां जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 2 दिन में एक दिन का काम नहीं होने वाला। 2 दिन लगातार करेंगे तो 2 दिन का काम होगा। सो इट मस्ट बी पेरिशेबल। वो पेरिशेबल क्वालिटी लगता है। अगर हम नहीं करेंगे तो इट मस्ट बी पेरिशेबल। द थर्ड पॉइंट, द मोबिलिटी ऑफ द लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन। यहाँ पे बात हुई सेकंड टाइम मोबिलिटी की। मोबिलिटी हैव 2 पॉइंट। फर्स्ट जियोग्राफिकल मोबिलिटी एंड वोकेशनल मोबिलिटी। जो भी वोकेशनल मोबिलिटी है वो वोकेशनल मोबिलिटी भी लेबर की है और जियोग्राफिकली भी है। यहाँ से हम अमेरिका जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ से यहाँ के वर्कर, यहाँ के मैनेजर अमेरिका में जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये बात हुई जियोग्राफिकल मोबिलिटी की। इट कैन बी पॉसिबल इन द टर्म्स ऑफ लेबर। और लेबर इज मोबाइल बोथ जियोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली। फॉर द एग्जाम्पल, लेबर माइग्रेट इन डिफरेंट रीजन्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट। वो हम कह सकते हैं। बट मैनी सोशल, इमोशनल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर लिमिटेड दैम मोबिलिटी। उनके पास इतना पैसा है, अगर दूसरे कंट्री वाले ऑफर करें ज्यादा पैसे से आप यहाँ आओ, आपका लेबर हम यहाँ परचेस करेंगे, आपको अच्छी तनख्वाह देंगे, तो भी उनको फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनकी लाइफ है। यहाँ से डायरेक्टली वहां जाएंगे, उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को, वहां के एटमोस्फियर को क्या वो सेटल कर पाएंगे? दिस ऑल आर द ड्रॉबैक्स फॉर मोबिलिटी ऑफ द लेबर। लेबर ये सभी बात सोचेंगे तो सोशल इकोनॉमी रीजन से उनकी जो जियोग्राफिकल मोबिलिटी है वो कम है। हाँ, मगर वोकेशनल मोबिलिटी है। एक ही पर्सन अगर उनके पास स्किल है, उसके पास नॉलेज है, तो क्लर्क से मैनेजर तक बन सकता है, प्यून से प्रिंसिपल तक बन सकता है, किसी कंपनी के अच्छे पोस्ट पे वो जा सकता है। इट इज टर्म्स ऑफ वोकेशनल मोबिलिटी। उसके ऊपर अगर हुनर है तो वो इतनी एफिशिएंसी से आगे बढ़ सकता है। फोर्थ पॉइंट, द एफिशिएंसी ऑफ द एवरी लेबर इज नॉट इज लेबर इज डिफरेंट। हर एक के जो स्किल है, जो मेहनत करने की कक्षा है, जो अच्छी तरह से कमाते हैं, वो हर एक के पास इक्वलाइजेशन नहीं है। देयर आर डिफरेंस इन स्पीड, क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द डिफरेंट लेबरर्स। एक ऐसा भी है जो सुबह 7 बजे से आके शाम को 7 बजे तक 12 आवर एक मशीनरी के सामने खड़े होके फुल्ली एफिशिएंसी से काम कर सकता है, तो दूसरा 5 to 6 आवर में थक जाएगा। इट इज पॉसिबल। Why? Because the efficiency of the every labor is different. अगर शिफ्ट में जो वर्कर वर्क कर रहे हैं उनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर दूसरे वर्क करने कोई लेबर ना आए तो उनकी जगह उनको पूरी ड्यूटी करनी पड़ेगी, उनको पैसे मिलेंगे। बट इफ दे आर एफिशिएंट देन इट पॉसिबल। एवरीवन आर नॉट एफिशिएंट, सो द एफिशिएंसी ऑफ द एवरी लेबर इज डिफरेंट। द सप्लाई ऑफ द लेबर डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन। Supply of the labor. If the population is going high and high in terms of Indian economy, there are 2% annual growth rate. Our population are basically increasing by 2 annual growth rate. जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतना लेबर बढ़ता जाएगा, उतना सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन जहां कम है वहां सप्लाई ऑफ लेबर कम है। और लास्ट पॉइंट, द रिम्यूनरेशंस ऑफ द लेबर इज कॉल्ड वेजेस, दैट वी डिस्कस अर्लियर, कि जो लैंडलॉर्ड है उनको हम रेंट देंगे और जो लेबरर है उनको हम वेजेस देंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई रिपीट अगेन, यू हैव टू कमेंट मी और यू हैव टू नोट डाउन व्हाट आर द रिम्यूनरेशंस फॉर द लैंडलॉर्ड एंड वेल्थ, सॉरी landlord and labor, sorry, how many laborer can get, or how the terms is called as a remuneration point for the labor. So that is answer is wages, यानी जो कमाने वो भी पैसे ही कमाएंगे, बापू की नौकरी हर एक को मिलने वाली है।
चाहे वो लैंडलॉर्ड हो या लेबर हो, हर एक को बापू की नोट ही मिलेगी। गांधी बाबू की नोट ही 500 2000 जो भी है वो ही मिलेगी, मगर द नेम, द हेड एंड द टाइटल ऑफ द डिफरेंट। अगर लैंडलॉर्ड है तो वो बोलेंगे कि हमें रेंट मिले, अगर लेबर है तो ऐसा बोलेंगे हमें वेजेस मिला, राइट। नाउ दिस पॉइंट इज कंक्लूड हियर। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ दिस 2.8.3, that is capital. What is capital? Give the characteristics of capital. Very easy, there are only 4 points of the capitals. Meaning of capital in economics terms: all man-made goods which help in the production constitutions is capital. I repeat again, in economy terms, ऑल मैनमेड गुड्स, जो हमने बनाए हैं वो सभी कॉमोडिटी अगर जो प्रोडक्शन के अंदर काम आती है तो वो कैपिटल है। आई रिपीट अगेन, इन द मॉडर्न टाइम्स कैपिटल इज कंसिडर टू बी द हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन ऑल मैनमेड गुड्स। सेकंड, ऑल मैनमेड गुड्स, रिपीट अगेन, मार्केट इंपॉर्टेंट, डिक्टेड इन द नोटबुक। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल, रिपीट अगेन, कैपिटल की डेफिनेशन यहाँ पे हम बात करें। ऑल मैनमेड गुड्स, जो हमने सभी जो गुड्स बनाए हैं वो, चाहे हमने ट्रैक्टर बनाए हैं, चाहे हमने मशीनरी बनाई है, चाहे हमने कोई रिकॉग्नाइजर स्कैनर बनाए हैं, या चाहे हमने कोई भी प्रोडक्टिव चीज बनाई है, ऑल मैनमेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट, जो प्रोडक्शन के ऊपर काम आती है वो हम कैपिटल की डेफिनेशन में उनको लेंगे। सो ऑल मैन-मेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट्स इज कैपिटल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंड एंड लेबर as it is produced factors of the production. In other words, it is man-made factor of the production. For example, a tractor is a produced at factor of the production which further helps in the production of the agricultural goods. काफी अच्छी तरह से ये बात समझाई है। जो मशीनरी से हमें लैपटॉप बना के देते, जो मशीनरी से हमें हेडफोन बना के देते, जो मशीनरी से ईयरफोन बना के देते, जो मशीनरी से ब्लूटूथ हम परचेस करते, जो मशीनरी से हम माइक्रोफोन परचेस करते, जिस मशीनरी से हम कंप्यूटर बनाते, जिस मशीनरी से हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, तो वो सभी कमोडिटी पहले हमने बनाई है। क्यों? दूसरी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो प्रोडक्शन मैनमेड है और जिसकी यूज प्रोडक्शन कंस्टिट्यूशन के लिए है वो सभी कैपिटल है। जो मनी है, फाइनेंस है, वो भी कैपिटल ही है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसे से, और पैसे से इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन बनेगी, और प्रोडक्शन बनेगी तो उस प्रोडक्शन से हम दूसरी प्रोडक्शन बनाएंगे। तो कैपिटल इज अ मैनमेड प्रोडक्शन। ट्रैक्टर हमने बनाया मगर उस ट्रैक्टर ने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, तो प्रोडक्शन के अंदर वो यूज हुआ। तो जो मींस प्रोडक्शन के अंदर यूज होते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ, दो सेवरल टाइम्स सम गुड्स आर फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन एज वेल एज वेल्थ, इट इज नॉट so always. A good may be capital goods as it help production, but it may not possess all characteristics of wealth, or another goods may be wealth but not a factor of the production. बहुत सारी wealth है मगर wealth को हम कैपिटल नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, फैन, रेफ्रिजरेटर, राइट, फैन, रेफ्रिजरेटर, आपके मोबाइल, आपका लैपटॉप, दिस ऑल आर नन एज अ वेल्थ। इट इज नॉट क्वालिटी टू प्रोड्यूस अनदर कॉमोडिटी फ्रॉम दिस। फ्रिज से कुछ बना नहीं, टेलीविजन से और कुछ बना नहीं, मोबाइल से और कुछ बना, हाँ आपने देखा एक दूसरे के साथ बातचीत की मगर उसके साथ कुछ प्रोडक्शन हुआ नहीं। तो दिस ऑल आर नन एज अ वेल्थ। कीप इन माइंड दैट wealth and the capital are similar, but even there are this type of widely different. Now we are discussing characteristics of capital. First is man-made factor. A man use natural resources in order to create capital. For example, iron is a natural resources on which man works and makes a needle, which become capital. If it is used a machine for the further production, it is called capital. तो ये एक मैनमेड है। हमने देखा लैंड नॉट पॉसिबल टू क्रिएशन बाय द मैन। कोई भी साइंस के अंदर या कोई भी लेबोरेटरी के अंदर ऐसा नहीं देखा हमने कि हमने लैंड क्रिएट किया, हमने वाटर बनाया, हमने सनलाइट बनाई। इट इज नेचर बेस्ड, मैनमेड नहीं है। लेबर ऑल्सो एंड कैपिटल आर ऑल्सो, वी डिस्कस ऑल पॉइंट, बट कैपिटल इज अ मैन मेड। सेकेंड पॉइंट ऑफ दैट,
Capital has highly mobility. Mobility skill are very important. Every characteristics point of land, labor, entrepreneur, capital, their mobility is one of the common points. So mobility of the capital is very high, very quick, very easy. Capital is the more mobile factor of the production of possesses of geographical mobility. For example, money, machines, etc. required for the production can be easily transferred from one place to another place. हम जानते हैं कि मनी है, मशीनरी है, तो एक प्लेस से अदर प्लेस पे अच्छी तरह से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. That is the geographical mobility of the capital is very easy and very quick. हम दूसरी बात करते हैं प्रोसेस ऑफ द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैन बी यूज एज ए ऑफिस और ट्रैवल एजेंट. हम उनकी बात करें कि अगर कोई हमारे पास 2 BHK 3 BHK का फ्लैट है, उसके हम रह भी सकते हैं, उसी के अंदर हम ऑफिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसी के अंदर कोई एजेंसी को भी हम इनवाइट करके कुछ प्रोडक्शन करवा सकते हैं. तो वो जो हमने अपनी जो वेल्थ थी उसको हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन मेथड के अंदर. तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल इज वेरी हाई. Money as a capital is highest mobility. It can be transferred to another place to other place. और उनका जो स्किल है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफी इजी है. अगर आपके पैसे किसी शहर के अंदर पड़े हैं और वो कंपनी अगर लॉस में जा रही है, तो वी कैन इजीली टेक आउट फ्रॉम दैट कंपनी एंड वी कैन इजीली इन्वेस्ट टू अनदर कंपनी. सो ऑक्यूपेशनली मोबिलिटी इज वेरी हाई. पैसे आसानी से एक शहर में से दूसरे शहर में कन्वर्ट हो गए. Second, the remunerations of the capital is interest. जो वो कमाते हैं वो इंटरेस्ट है. जो कैपिटलिस्ट है वो इंटरेस्ट कमाते हैं. The increasing demand for the capital is present times owing to increasing capital intensive methods of production has resulted into increasing scarcity of his factors. यहाँ पे एक बात हुई, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट की बात हो रही है. सेकंड 5 प्लानिंग के अंदर 1956 के बाद वन मोटो टू डेवलप इंडिया टू अडॉप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी. यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू यूज मैक्सिमम capital intensive method in the production. So when the capital intensive method in the production, then it is increase in the capital and increase in the production. But in other hand, there are less labor force are engaged. So when this type of condition is occurred, demand in economy, how it fall, it is very important to capital are increase. अगर हमारी प्रोडक्शन मेथड मैक्सिमम कैपिटल से ही जा रही है तो हमें ज्यादा से ज्यादा मशीनरी का ही यूज करना पड़ेगा. अगर हम हाथ से एक शॉप बनाते हैं और मशीनरी के अंदर शॉप बनाते हैं, या फिर कोई भी क्लॉथ हम हाथ से अगर उनको वीविंग करते हैं और पूरे इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के उसके अंदर जो हम कपड़े बनाते हैं, उस दोनों में फर्क है, हाईली फर्क हम डिफाइन कर सकते हैं. तो दिस आर द 4 पॉइंट फॉर द कैपिटल इज complete here. 4 point for the capital characteristics are ended over. Now next, entrepreneur, very important. Entrepreneur is a factor which bring together, coordinate all the other factors of production for the production process. ये entrepreneur है जो हम बोल सकते हैं, it is a king, it is a one of the boost of the entire economy. अगर entrepreneur है तो अच्छी तरह से हर एक force of factor को मैनेज करेगा. और इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंडेंट है. इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके पास अच्छी क्वालिटी होती है मैनेज करने की, उसके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मगर तीनों को कैसे अच्छी तरह से वो इन्वॉल्व करे, दैट इज द मेन क्वालिटी. सो एंटरप्रेन्योर इज द फैक्टर विच ब्रिंग टुगेदर ऑल अदर फैक्टर्स इन प्रोडक्शन. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड coordinations. Management of work is done by the manager who is salarized laborers employee, and entrepreneur is the person who set up the enterprises. मैनेजर है वो कमाने के लिए बैठे, वो दूसरे को वर्क करवाएंगे, मगर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर खुद वर्क करेगा, खुद डिसीजन लेंगे, खुद रिस्क उठाएंगे. उनका जो भी मैनेज हुआ उसके ऊपर जो उसको मुनाफा मिला तो वो कमा सकेगा. अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई, कुछ भी टेक्निकल एरर आई, अगर डिसीजन लेने में कुछ गड़बड़ी हो रही है, अगर रिस्क उठा रहे हैं, अगर फेल हुए पूरे क्रॉप, पूरे प्रोडक्शन फेल हुआ, तो दैट
not possible to get their earning profit capacity. So here first point is for the entrepreneur is एंटरप्रेन्योर इज अ डिसीजन मेकर ऑफ द एक्टिविटी. वो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकर है वो किसी भी कंपनी के लिए, कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए. डिसीजन का मतलब क्या? वी हैव टू सिलेक्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स. कोई भी अगर अलग अलग हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, उनमें से किसी एक का अगर हम सिलेक्शन करेंगे, दैट इज अवर डिसीजन. ही ऑल चूज आर्ट्स और कॉमर्स. यू आर नॉट select your science line or some of the vocational line. You are the students of general stream. Why? Because you have getting interest in it. आपको उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए आपने. तो डिसीजन का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हो और आप कोई भी सिलेक्ट करो, उसका नाम है डिसीजन. तो इकोनॉमी के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है उनके सामने बहुत सारे डिसीजन मेकिंग पॉइंट आते हैं. कहाँ से रॉ मटेरियल परचेस करना, कब करना, कौन से रेट पे करना, अगर ज्यादा रेट के ऊपर कर रहे हैं, कम रेट पे कर रहे हैं तो रिस्क कितना है, उनको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, कब हम इंटेलिजेंट और रैशनल डिसीजन ले कि हमारी फैक्ट्री को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो. ये सभी पॉइंट डिसीजन मेकिंग के हैं जो एंटरप्रेन्योर उठाते हैं. सेकंड, दिस फैक्टर इज नोन एज ए रिस्क फैक्टर, रिस्क टेकिंग फैक्टर. ये काफी इंपॉर्टेंट है पूरे इकोनॉमी के अंदर. ही entrepreneur takes risks regarding the uncertainty in the activity of the production. कल किसी ने नहीं देखा, रिस्क हर एक के ऊपर है. अगर अच्छी तरह से फसल हो रही थी मगर बारिश तेज आई, फार्मर के जो सपने थे वो बिखर गए. सेम यहाँ पे बात हो रही है. अगर आपके पास अच्छी तरह से पूरा मैनेज हो रहा है मगर जो आपके हाथ में नहीं है, ऐसे अगर अनसर्टेनिटी अगर आपको फेस करनी पड़ी तो आपका पूरा प्रोडक्शन जीरो होने के चांसेस है. अगर तेज बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, इंटरनल फायर हुआ या फिर बहुत सारे एम्प्लॉई ने स्ट्राइक कर दी, दिस आर द रिस्क फैक्टर फॉर द एम्प्लॉई, एंटरप्रेन्योर. नाउ थर्ड पॉइंट, द possesses the quality of coordination. In other word, entrepreneurship is quality. Entrepreneurship is a quality, that is, he passes the benefits of variety and quality of the product of the customer. उनके पास हुनर होने चाहिए, स्किल होने चाहिए, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करे, कैसे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, प्रोडक्शन मेथड कौन सी चेंज करे, जो नीम कॉम्पिटिशन के अंदर उनको टिकना है तो कैसे वो टिक पाए. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. अगर एंटरप्रेन्योर के पास ये स्किल है, ये उसके पास अगर कुछ ट्रिक है तो वो पूरे मार्केट में अंदर टिक जाएंगे. दिस आर द कोऑर्डिनेटिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड, इट इज एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी. उसके पास होनी चाहिए, जिसे नेतृत्व शक्ति हम कहते हैं. वो अच्छी अगर बजाएगा वो तो अच्छी तरह से उनको कुछ ना कुछ मिल सकता है. और सेकंड, उनका रिम्यूनरेशंस, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट. उनको जो मिलता है वो प्रॉफिट है. आई रिपीट अगेन, एवरीवन राइट ऑन कमेंट बॉक्स और राइट इन योर नोटबुक the remunerations of various factors of the production. Write down the remunerations of various force of factors in the production. यानी वेजिस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट जो अलग अलग फोर्स ऑफ फैक्टर को मिलते हैं वो आपको लिखने हैं. लैंड को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, कैपिटल को क्या, लेबर को क्या, ये सभी उनके रिम्यूनरेशन पॉइंट अलग अलग है. दैट यू हैव टू डिक्टेट इन योर नोटबुक और इन कमेंट बॉक्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. ट्रेड साइकिल, हर एक इकोनॉमी के अंदर ट्रेड साइकिल होती है. और ट्रेड साइकिल क्या है, ट्रेड साइकिल के लिए बहुत सारे पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं. इन इकोनॉमी डायनेमिक चेंजेस अकर थ्रू डिफरेंट फेजेस. Such changes are known as economic changes, and which are 4 types. There are irregular changes, seasonal changes, long run changes and cyclical changes. जो उतार चढ़ाव आते हैं इकोनॉमी के अंदर, लाइक डिसलाइक आती है, अच्छा इकोनॉमी चल रहा है, डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, अगर फॉल भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, ये सभी ट्रेड साइकिल है. इरेग्युलर चेंजेस होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, लॉन्ग रन चेंजेस होते हैं, लॉन्ग रन डायनेमिक चेंजेस होते हैं. दिस आर known as a one type of trade cycle. irregular changes यानी जो हमारे हाथ में ही नहीं है,
There are accidental changes which are occur in the economy activity like floods, famines, storm, fire, so on. Such accidental impact our economy activity in the short run and sometimes it may be long run. काफी अच्छी तरह से ये 2020 का ईयर गुजर रहा है। इरेगुलर चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। पढ़ाई हम घर पे कर रहे हैं, राइट, हमारे हाथ में ही नहीं है कुछ, तो ये इरेगुलर चेंजेस पूरे इकोनॉमी को तबाही के दौर पे आगे ले जा रहा है। कैसे कब कंप्लीट होगा पता नहीं है, मगर ये ट्रेड साइकिल के ये लाइव एग्जांपल हम अभी फेस करें 2020 के ईयर के अंदर जब ये वीडियो बन रहा है तब आपको पता चलेगा कि ये रेगुलर चेंजेस इकोनॉमी में ऐसे भी आ सकते हैं। पूरा माहौल, डायमंड मार्केट डाउन हो रहा है, सभी इंडस्ट्रीज डाउन हो रही है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के चांस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पूरा इकोनॉमी तहर-बहर हो गया है। तो ये इरेगुलर चेंजेस है। सेकंड, सीजनल चेंजेस, मॉनसून, समर, राइट, ये सभी के अंदर अपनी अपनी डिमांड अलग अलग होती है। प्रोडक्शन पूरे साल चलता है मगर उनकी जो डिमांड है वो रेगुलर बेस पे नहीं होती, अपने सीजन पे ही होती है। तो इट इज कॉल्ड सीजनल चेंजेस। हर एक साल में हम रेनकोट और अम्ब्रेला की डिमांड नहीं करते मगर उनका प्रोडक्शन तो हर साल चलते ही रहता है। इट इज कॉल्ड सीजनल चेंजेस। Long run regular changes, some changes occur in a given direction in terms and in the forms of the trends. These are direction changes which occur in a activity. For example, some regular sales trend जो लॉन्ग रन हमारे साथ चलता है, चेंजेस in an economy, some changes occur in a given direction in form of the trend. These changes are called long run regular changes. For example, some regular sale trend, population trend, these are developing economy changes are directional. यानी अगर हमारे लिटरेसी रेट अगर कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है, पोवर्टी रिड्यूस हो रही तो अच्छी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम रिड्यूस हो रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है लगातार तो एक ट्रेंड बन जाता है, लॉन्ग रन तक वो चेंजेस होते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन चेंजेस। ये सभी एग्जांपल दिमाग में रखना, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा। अगर नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार पोस्ट करके भी देखो, जो एग्जाम्पल है उसके ऊपर ये पूरा पॉइंट आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। Now, cyclical changes, dynamic fluctuations arising in economy over its long run growth, leading to rise upward swings in growth of economic activities and fall downward swing are called trade cycle. In rise and fall in economy activities, cyclical in nature. काफी इंपॉर्टेंट बात अब हम डिस्कस करेंगे। साइक्लिकल इकोनॉमिक चेंजेस, डायनेमिक चेंजेस अराइजिंग इन एन इकोनॉमी ओवर इट्स लॉन्ग रन ग्रोथ लीडिंग अपवर्ड स्विंग, यानी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अच्छी तरह से सभी को खाने पीने के लिए मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, जैसे हमने एक्टिविटी स्टार्ट की, हर एक लेबर आ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दिस आर द अपवर्ड स्विंग। और उसी तरह हमारा मार्केट डाउनवर्ड स्विंग भी जा सकता है, यानी जो एक्टिविटी पहले अच्छी हो रही थी वो अगेंस्ट में बुरी हो रही है, अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए हैं, इंटरेस्ट रेट के ऊपर कम मिल रहे हैं हमें पैसे, दिस ऑल आर द क्वालिटी ऑफ डाउनवर्ड स्विंग्स। Such changes occur in economic activities and growth process of the economic also goes through these changes, and the study of the dynamic changes called trade cycle. Very very important। जो ट्रेड साइकिल की बात हो रही है उसमें एक ही बात दिमाग में रखनी है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ऐसे जो अप्स एंड फॉल्स जो इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं वो एक्टिविटी जो होती है वो साइक्लिकल ट्रेड कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट here to economist name, find out yourself and highlight it according to Hubler। जो हबलर ने जो अपने इकोनॉमिक्स की बात की है, द साइकिल इज एन इंटरवल दैट इम्बर्स alternating periods of the prosperity that is good times and depression that is bad time। यानी सही वक्त और गलत वक्त। गलत वक्त का मतलब कि इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन इज अ स्लो पॉइजन, जो हम मंदी कहते हैं हिंदी में, उसको तेजी बोलते हैं, वो अच्छा टाइम है, अच्छी बात है, और मंदी यानी बैड टाइम है। तो हबलर ने अपने डेफिनेशन के अंदर ये 2 बात बताई है अपनी डेफिनेशन के अंदर कि जो भी
cycle interval that immerse alternative periods of the prosperity, good time and bad time. It is called trade cycle. According to the Hotway, here second economist introduced, according to Hotway, trade cycle are continuous phases of good and bad changes. Very very important, good and bad changes. यहाँ पे दो अच्छी और बुरी changes जो इकोनॉमी के अंदर occur होगी, that is called definition of trade cycle according to Hotway. यानी good and bad, यहाँ पे दो बात उन्होंने की है जो इकोनॉमी के अंदर अच्छी और बुरी बातें, जैसे तेजी और मंदी की बात करते थे, उन्होंने दो वर्ड दिए, गुड एंड बैड चेंजेस अकरिंग इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल ट्रेड. Now correct with the help of this point, 4 points are there for the characteristics of the trade cycle. Dynamic changes in the economy. Second, despite the positive and negative changes in economy, so depict the positive and negative changes in the economy. There arises because of several factors are there. Trade cycle have various phases and each phase does not last for the uniform periods. Now 2.11, last point of this chapter. Here you can see exercise question are also there, but you have not dictated this exercise type questions, only keep on this point. Phases of trade cycle, very very important for section D or section E. What are the phases of the trade cycle? A trade cycle has the following 4 phases: boom, that is inflation; recession, depression and recovery. I repeat again, there are four types are there for the trade cycle. First is boom. That is called अच्छा, तेजी, मार्केट में काफी अच्छी तरह से लोग जा रहे हैं. दिस इज द पीरियड व्हेन द इकोनॉमी एक्टिविटी रीचेस द मैक्सिमम ग्रोथ लेवल इन द गिवन टाइम्स ऑफ पीरियड. हर एक को रोजी रोटी मिल रही है, हर एक को प्रॉफिट मिल रहा है. जैसे ही हमने शॉप के शटर्स को ऑन किया, बहुत सारे कतार में लोग देखने को मिल रहे हैं. दिस आर द गुड हेल्दी एंड पिंक एटमोस्फियर, इन इट इज कॉल्ड पिक ऑल्सो. ये पीरियड काफी अच्छा है इकोनॉमी के लिए. सेकंड है रिसेशन. सेकंड पॉइंट इज रिसेशन यानी मंदी, अपोजिट देन द बूम. दिस पीरियड फॉलो द पीरियड्स ऑफ बूम when the economic activity peaks in the given period and the investment and the employment have reached the highest possible level. A slow down occur demand, slow down investment and employment. यहाँ पे पूरा फॉल हो जाता है, हमारा जो ऊपर का हुआ था वो धीरे धीरे डाउन होता नजर आता है. हर एक जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, सुबह से दुकान पे है मगर कोई आ नहीं रहा, क्या करे, लोगों के पास पैसे है मगर वो खरीद नहीं पा रहे हैं, परचेसिंग पावर लेटेड डाउन. ये सभी जो कंडीशन है वो रिसेशन की है. सेकंड डिप्रेशन दैट इज कॉल्ड मंदी. आई रिपीट अगेन, रिसेशन यानी जो ऊपर की थोड़ी सी बात हुई वो रिवर्स हुई है और बूम से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ रिसेशन में. डिप्रेशन, द स्लो डाउन इन द रिसेशन पेस कंटिन्यूसली. बाजार के अंदर कंटिन्यूसली डिप्रेशन है, एक्टिविटी आर मिनिमम लेवल, सर्कमस्टेंसेस आर नॉट गुड, सर कॉन्फिडेंस ऑफ द बायर्स, प्रोड्यूसर एंड इन्वेस्टर इन द इकोनॉमी एक्टिविटी इज एट लोएस्ट स्टेज. The phases of the recession continue started in the production, in demand or in supply. हर एक जगह किसी के पास डिमांड करने के लिए पैसे नहीं है, प्रोडक्शन अपने शॉप में प्रोडक्शन लेके बैठे, स्टॉक भरा पड़ा हुआ है, नेक्स्ट प्रोडक्शन के बारे में वो सोच नहीं सकते. ऐसी कंडीशन से अगर जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. एंड लास्ट वन इज रिकवरी और दैट इज इम्प्रूवमेंट ऑल्सो. रिकवरी, when the depression leads for some time, the suppressed demand started automatically in the market. Government may try to boost investment and employment, and certain times technological changes happen in the long run. This leads the recovery in the demand. यानी गवर्नमेंट को कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, उनके अंदर ऐसी कंडीशन लानी पड़ेगी कस्टमर के अंदर जो अपने परचेसिंग पावर को ज़्यादा करे. उसके लिए बहुत सारे सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और एम्प्लॉयमेंट जैसे जनरेट होगी पैसे आएंगे तो फिर से डिमांड होगी तो सप्लाई के लिए प्रोडक्शन करने के बारे में प्रोड्यूसर सोचेंगे. दिस ऑल आर एक्टिविटी इज नोन एज रिकवरी. सो दिस टाइप्स ऑफ साइकिल अकर इन ऑल इकोनॉमिक्स इन
all economic activities in the long run. However, in the market oriented economy, those occur more openly while they may be suppressed by the state in the state controlled economy. So this chapter over here, I am thankful to all, and these are the exam, these are the question. It not for you, it is only for your study. We will going to discuss this all in revision round, so you have to just keep watch, and which instruction I have been given during the video you have to follow it strictly. And second, very important is that you have to prepare yourself notebook, and you have to create your own MCQs from all pages, minimum 4 to 5 MCQ in one pages. You have to find out yourself, and you have to dictate answer of it. And if there is problem regarding this video, you have to direct call me, or you have to direct mail me in cknayak78@gmail.com. So, and if you have not, yeah, there are other way for you, that is comment box. Subscribe my YouTube channel. Those who are new viewers, I am thankful to you for watching till the end. Keep watching ICT Covery for the third chapter. We are going with third, fourth, fifth chapter like this manner, and then after the revision round is going on. So those who are still not having idea, those some of the doubt are in your mind, that will be solved in revision round. Question answer method are there, and I'm very thankful, and I am very thankful to you. Thanks a lot. We are in touch in some of the other chapter in next video. Thank you. Thanks a lot. Thank you for the day.